Hello students, now we are going to evaluate another example. You can see here, this is the integration of 2x plus 1 upon x, 3x plus 2 into 4x square plus 5x plus 6. Here you can see that in the denominator there are two factors. Okay? You can see here, this is a linear expression and another is a quadratic expression. We have already told you that whenever a quadratic equation has two roots, we already know that. If the roots of this quadratic equations are complicated, it becomes like in the form minus b plus minus under root d upon 2a. So in that case, we do not use limiting method because it will be so complicated. So in that situations, we have to use comparison method. And comparison method is the sufficient method to find all the parameters involved in the partial fractions. And there is no need to use the another method when we use the comparison method. So here we are going to evaluate the unknown parameters by comparison method. So first of all, we have to resolve this into partial fractions. So look at it. Resolution. Sorry. Resolution. 2x plus 1 upon 3x plus 2 into 4x square plus 5x plus 6. And this is equal to a upon 3x plus 2. And this is bx plus c upon 4x square plus 5x plus 6. Here A, B and C are three unknowns. Can you see? Adjust the camera. You can see. Okay. Now we use comparison method. So here we have to take LCM. So 3x plus 2 into 4x square plus 5x plus 6. Here a into 4x square plus 5x plus 6 plus bx plus c into 3x plus. Here again we have to calculate and written in the simplified form. So here we can write 4a plus 3b x square. Now again plus 5a plus 2b plus 3c into x plus constant term 6a plus 2c. You can see here 6 into a 6a and another constant term is 2c. So this is upon 3x plus 2 into 4x square plus 5x plus 6. Now in the left hand side, the numerator you can write 0x square plus 2 into x plus 1 upon this 3x plus 2 4x square plus 5x plus 6. Why we write this expression like this? Because we have to use comparison method. Clear? On comparing we get क्या मिलेगा कंपेयर करने पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है 4a plus 3b और इधर x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 0 तो 4a plus 3b is equal to उधर आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट कितना है तो 5a plus 2b plus 3c और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2. उसके बाद उधर कितना है 6a प्लस 2c इज इक्वल टू यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1. कांस्टेंट टर्म देख सकते हैं आप
राइट हैंड साइड में 6a प्लस 2c, यहाँ कॉन्स्टेंट कितना है 1। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको 3 इक्वेशन मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग को एक चीज पता होगा, ये मैथमेटिक्स का एक जनरल रूल है कि अगर आपको कुछ अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने हैं जो इक्वेशन में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अननोन पैरामीटर तभी निकल सकता है जब नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द अननोन पैरामीटर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास 3 अननोन पैरामीटर्स हैं तो उन तीनों अननोन पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करता हुआ 3 को इक्वेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो आपके पास 3 इक्वेशन है और आपके पास अननोन पैरामीटर कितने हैं 3 है। तो मैथमेटिक्स का जो रूल है उसको फॉलो करता है। इसका मतलब अगर आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपको एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ये तीनों को आप एलिमिनेशन मेथड जो भी है सिस्टम मेथड का यूज करते हुए ये तीनों आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग वी गेट, ऑन सॉल्विंग वी गेट ए का जो वैल्यू आता है, ए का वैल्यू वो आता है -3/40, ठीक है। बी का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 1/10 और सी का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 29/40, 29/40, ठीक है। जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करो आपको क्या मिल जाएगा, आपको हम चेकआउट करके दिखा सकते हैं। अगर ए का वैल्यू -3 समथिंग है तो ये -3/4 हो गया और ये हो गया 3/, ठीक है। समथिंग सिंप्लीफाई कर रहा है, ये डाटा जो है तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेगा, मतलब ये डाटा आपका सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ए बी सी की जगह मैं ए बी सी का वैल्यू डाल देता हूं। hence you can write in place of a you can write -3/40, in place of b you can write 1/10, or in place of c you can write 29/40. So this is the complete partial fractions. You can see here this is complete partial fraction, you can see, and here we use to find the unknown parameter ABC. The method is called comparison method, and you can already know that what is a comparison method and how can we use this method. Clear? Now there is the resolution is not the question. The question is we have to integrate this integral. So we have to integrate this integral. So therefore integration of 2x plus 1 upon 3x plus 2 into 4x square plus 5x plus 6 with respect to x. This is equal to, here the constant -3/40. So you can take out outside sign of integration, and the remaining term is 1/3x plus 2, and the integration of this with respect to x. Here you can take the constant term 1/40 common, so it will be 1/40 outside the sign of integration, and there is not 40 here, so we can write 4 into 40, so it becomes 4x plus 29, and the denominator is 4x square plus 5x plus 6. Clear? Now -3/40 you can write -3/40, and this is ln mod 3x plus 2, and you can see here guys, you can see here the coefficient of x in the linear term is 3. So to write the complete integral we have to divide this integral by 3. So here you can write 40 to 3, and you can see here there is another integration. You can see
the numerator is a linear expression and the denominator is a quadratic expression, and this type of integral we have already solved in the last 2 or 3 lectures. So here 1 by 4t, and this is take h, and this is say I1. Now we have to evaluate the integration I1, and lastly put the integral I1 here, we will get the final answer. So here you can see. हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब हमको I1 कैलकुलेट करना था, तो I1 इतना ही ना है, लीनियर बटा क्वाड्रेटिक। तो हमको पता है, इसका रूल है कि हम लोग लैम्डा म्यू के टर्म में लिखते हैं। तो हम लोग इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि लैम्डा म्यू में डायरेक्टली वर्कआउट करते हैं। हमको पता है कि लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन की जगह हो जाएगा 8x + 5। तो यहाँ मैंने अपने मन से 8x + 5 लिख दिया। मैथमेटिकली आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बिना लैम्डा म्यू लिख करके भी आप डायरेक्टली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना आपके पास मतलब माइंड होना चाहिए, और हमको लगता है कि प्रैक्टिस करते करते आदमी इतना सीख जाता है। तो आपको लिखना है 8x + 5 अपने मन से, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास तो 4x था, अभी आप कांस्टेंट टर्म को भूल जाइए। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको वर्कआउट कीजिएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 5/2। तो एक्स्ट्रा में 5/2, लेकिन आपको लिखना था कितना, 29। ठीक है, तो आप 29 लिखना है, लेकिन आपने क्या लिखा, 5/4 प्लस। तो एक काम करिए, आप -5/4 कर लीजिए, 5/2 कर लीजिए। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 58 - 5, तो हो जाएगा 53/2। तो कांस्टेंट टर्म जो हुआ एक्स्ट्रा में, वो आपका 53/2 होगा। तो कांस्टेंट टर्म आप अलग कर लीजिए, जितना एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म आपको लिखना है। तो ये कांस्टेंट टर्म अलग हो गया, और बाकी जो ये डिनोमिनेटर है, इसको आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से जाना, और ये आपको पता है सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे से जाता है। तो हमने इसको सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के टर्म से जाना है। अब क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव और ये फंक्शन है, इसका डायरेक्ट हमको पता है फार्मूला क्या पता है, हाफ ऑफ ln mod fx, दिस इज द fx बिकॉज़ दिस इज fx, प्लस 53/2 कांस्टेंट हो गया, और इसको मैंने 2x + 5/4 का होल स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट टर्म जो है उसको मैंने ले लिया। तो ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, 1/x² + a², मतलब tan इनवर्स वाला कांसेप्ट है। तो ये एज इट इज लिखा गया, प्लस 53/2 ऑलरेडी होगा, a की जगह में कितना है, तो इतना, तो 1/a होता है, तो 1/74 1/71 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ जो नीचे 4 है वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर। tan इनवर्स x, ये पूरा का पूरा x अपॉन a, लेकिन हमको पता है लीनियर टर्म के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उससे डिवाइड होना, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस वी विल गेट I1। अब हमको जो फाइनली आंसर लिखना है I, ठीक है, तो I हम यहाँ लिखेंगे, इतना तो मेरा पहले से आया हुआ है। ठीक है, अब I1 की जगह में I1 कर दूंगा, तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए, जो भी हम लोग टॉपिक्स अभी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब लास्ट जो इसका मतलब टाइप है उसमें पहुंचते हैं। तो जो मेरा लास्ट टाइप है वो क्या है, आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। अभी जो मैं एक इंटीग्रेशन लिया हूँ उसमें जो भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर को आप गौर से देख सकते हैं। जब इसके डिनोमिनेटर को देखिएगा तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x × x² + 1 का होल स्क्वायर, मतलब x² + 1 खुद क्वाड्रेटिक है लेकिन उसका स्क्वायरिंग किया हुआ है, इसका मतलब यही टर्म 2 बार आया, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस कैटेगरी में रखें। अब हमको देखना है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो
कैसे हम लोग इसका क्या करेंगे, क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि मेन तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है। इंटीग्रेशन आप देख चुके हैं, 2-3 लाइन का इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिजोल्यूशन करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। Before resolutions we have to assure that the given fraction is proper or not, ये बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो 4 है और जो डिनोमिनेटर का डिग्री है वो आपका 5 हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब प्रॉपर होगा, इसका मतलब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही लीनियर टर्म है, दूसरी a अपॉन x लिखते हैं, ठीक है, प्लस उसके बाद क्वाड्रेटिक का रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी रिपीटेशन हो तो आपको उसको उतना पावर तक लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे 2 है तो 1 से स्टार्ट करना और दूसरा तक भी लिखना है। तो इसका मतलब ये तो लिखेंगे ही, लेकिन एक टर्म और लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ABC यूज हो चुका है तो हो जाएगा dx प्लस e। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 5 अननोन टर्म है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेयर A, B, C, D and E are unknown parameters। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। एक और ऑप्शन है, तो नोट देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो देयरफॉर x बराबर आधा प्लस और माइनस आधा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी कुछ देर पहले भी आया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट रूट्स जो है इसका बहुत सिंपल है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको बोला गया है कि आप जो है लिमिटिंग मेथड का यूज करें, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो a के लिए लिमिटिंग मेथड, तो a से तो लिमिटिंग मेथड निकल जाएगा a, क्योंकि ये जो है लीनियर एंड नॉन रिपीटेशन के केस है। और रिपीटेशन के बारे में बात किए हैं कि रिपीटेशन में हायर टर्म वाला, हायर पावर वाला निकलता है, इसका मतलब आपका d और e जो है लिमिटिंग मेथड से निकलेगा, लेकिन बाद में जो बचा हुआ b और c रहेगा उसके लिए फिर डेरिवेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो निकल सकता है लिमिटिंग मेथड से, उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं यूजिंग लिमिटिंग मेथड टू फाइंड a, d एंड e। क्लियर? यहाँ लिखेंगे 4a। चलिए एक लिए काम करेंगे तो हमको पता है राइट साइड में ये बचता है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिखिए। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 पे 0 हो रहा है, और यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x टू दी पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन नीचे लिखा जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x। इसी के वजह से वर्ड 0 आ रहा था, ऐसे नोट कर दिए। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 0 कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1, इसका मतलब a का वैल्यू लिखना है 1, ठीक है। चलिए अब 4 किस लिए काम करेंगे, d एंड e के लिए, आपको पता है हायर पावर वाला लिमिटिंग मेथड से लिखेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू आयोटा, ये हो जाएगा आपका 2 into x to the power 4 plus 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 into x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x into x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पता है ये टर्म 0 ये बचेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आयोटा, यहाँ हो जाएगा dx प्लस e, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जिस टर्म की वजह से 0/0 आता है उसको कैंसिल आउट कर दें, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसके बदले में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आयोटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमको पता है आयोटा इंटू तो पावर 4 जो होता है वो 1 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 हो जाता है, इसलिए यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ आयोटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और उधर आप देख सकते हो ये हो जाएगा d आयोटा प्लस e हो जाएगा। ये 2 और 2 खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -d प्लस e आयोटा, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू -1 और e इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग a, d और e का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। अब यहां लिखेंगे हेंस, जो वैल्यू निकला है उसका वैल्यू उसकी जगह में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया था 1, यहां लिख देते हैं। d का वैल्यू -1, यहां हो जाएगा -x, और e का वैल्यू कितना आया था 1, ये हो गया आपका 1। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ लुक, आई एम रिटर्न आफ्टर few minutes। हेलो फ्रेंड्स, अब आप क्या करोगे कि b और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग यूज करेंगे। तो एक बार ये करते हैं, पुट x बराबर 1 पुट करते हैं, कहाँ, तो इन 1, और देखते हैं क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जितना अननोन होगा उतना बार वैल्यू पुट करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कभी भी जीरो और आयोटा या प्लस आयोटा या माइनस आयोटा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर पे के रूट्स को कभी यहाँ पुट कर ही नहीं सकते। अगर आप कीजिएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर उस सिचुएशन में आप बी और सी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास बहुत सारा नंबर है, ऐसा नहीं नंबर का कमी है, आप किसी भी नंबर में चेक कर सकते हो एक्सेप्ट द रूट्स ऑफ द नंबर। सो हियर वी कांट पुट x बराबर 0 और x बराबर प्लस आयोटा और x बराबर माइनस। सो हियर वी पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन में। जहां भी x है वहां पे 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 1, और नीचे हो जाएगा 1 × 1 + 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, and this is equal to 1 plus, then you can write b plus c by 2 plus, जैसे ही x की जगह 1 डालेंगे तो पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6, 6/4 मतलब 3/2, -1 is equal to b plus c by 2। सर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू b plus c by 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज b plus c is equal to 1, ये हो गया आपका 2। अगेन पुट x बराबर -1 इन 1। फिर क्या करते हैं हम लोग, x जहां भी x है वहां पे -1 पुट करते हैं। तो जैसे ही -1 पुट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, बट यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये -1 तो ये हो जाएगा -4। क्लियर होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस -b + c अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2, और जैसे ही x के -1 रखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 + 2 अपॉन, नीचे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। क्या कितना कर सकते हैं। After calculation we will get this is cancel out, so 4 becomes -4, this is -1, so -1 plus c minus b by 2 or plus 1 by 2, here this cancel out, so c minus b by 2 is equal to -1 by 2, here 2 and 2 cancel out, so this becomes c minus b by is equal to -1. Here you can get next equation. So the equations are b plus c is equal to 1, and here minus b plus c is equal to -1. After adding we will get c is equal to 0. When c is equal to 0, we will get b is equal to 1. Clear? फिर से hence b का वैल्यू कितना आया 1 और c का वैल्यू कितना आया 0। तो ये जो आपको दिख रहा है this is
complete partial fraction. You can see this is complete partial fraction. हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि ये मेरा कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने ए बी सी डी ई तक का वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये ना क्वेश्चन था हम लोग का, इंटीग्रेट करना मतलब ये इंटीग्रेशन कितने टुकड़े में टूट जाएगा, 3 टुकड़े में। ये हो जाएगा 1 2 3। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ln mod x ln mod x। इनफैक्ट इसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है नीचे का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो है x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ 2x नहीं है तो अपने पास से 2x लिख दिए, x तो पहले से था 2 लिखा गया, तो 2 को मैंने मैनेज कर दिया। अब इसको मैंने 2 टुकड़ा में तोड़ दिया, एक x वाला अलग कर दिया, एक 1 वाला अलग कर दिया। इसके क्या लिखा कि माइनस बाहर कर दिए और अपने में से 2x लिख दिए, dx लिख दिए, 1/2 मैनेज कर दिए, ये पूरा और 1 वाला 2 वाला। इसका इंटीग्रेशन लिख चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन ln mod fx हो जाएगा। mod इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि x उसका +1 पॉजिटिव है, mod नहीं लगेगा। माइनस हाफ ऑफ दिस, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये जो है x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज करते हैं तो हो जाएगा x⁴ + 2x² + 1। आपको बता दें ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इसको I0 मान लिया और बगल में लिख दिया स्पेशल इंटीग्रल और लिख दिया डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में इसको हम लोग यूज करेंगे। और बाकी जो ये पार्ट है इसको इंटीग्रेट करना है कि x² + 1 को ही t मान लिया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x dx, देख सकते हो आप dt, तो ऊपर वाले की जगह में हो जाएगा dt और नीचे में हो जाएगा t², तो हो जाएगा -1/2 dt/t²। आपको पता है -1/t² = 1/t, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ मैनेज कर दिए और उसके आंसर में 1/t हो गया और ऑलरेडी आपके पास 2 है, ठीक है। और बाकी जो लिखा हुआ उसको लिख दिया और ये प्लस I0, क्योंकि अभी तो हम ये निकाल नहीं सकते हैं ना, तो I0 लिख दिया प्लस कांस्टेंट c। अब t यहाँ वैल्यू डालना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं डाला। आप लोग कभी कभी होता है कि जब आप एग्जाम में बना रहे हो और आपका समय बहुत कम रहे और फाइनली आपको t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो t का वैल्यू जो है लास्ट में मेंशन कर देंगे। तो t का वैल्यू लास्ट में कितना मेंशन करेंगे, x² + 1, अल्टीमेटली x² प्लस मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का एंड होता है। इसमें कुछ सवाल और भी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन आप चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उसको पिकअप कर सकते हैं, उसको बनाइए, क्वेश्चंस इजी वे में बनेंगे। सो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।